Hello students, Swati Patil here. Now third section 3.1 summary writing. I have already sent you important notes related to this topic as well as one video before. Let's see icebreaker in detail in this lecture. First, here definition of summary writing is given here. A summary is a record in the reader's own word that gives the main points of a piece, such as a newspaper article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. Means summary writing means it is just a record of reader's own word, whatever reader understood by listening or reading that article or any lecture. He just write down those words, those information into his own word. It is called summary. See, icebreaker. First activity is given here. Discuss in pair and guess the correct alternative for the following. The summary means four options are given here. Summary means put information in chronological order. 2. Recapitulate the main points in selection. To introduce new information. To write one's opinion about selection. Four options are given here. Second one is the proper option because just writing information in chronological sequence में वो लिखना इसका मतलब समराइज करना ये नहीं होता. या फिर यहाँ पे दिया है थर्ड वन, इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन. जो भी हमने उस पैसेज में पढ़ा है, देखा है, अंडरस्टैंड किया है, उससे नया इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाना, ये भी उसका मीनिंग नहीं होता. टू राइट वंस ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन, खुद का ओपिनियन भी समराइजिंग करते हुए नहीं ऐड करना है. तो समराइजिंग मीन्स टू रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट इन सिलेक्शन. रिकैपिचुलेट मीन्स संक्षेप में लेना, सारांश में लेना, इन शॉर्ट करके लिखना. सो बी इज द प्रॉपर आंसर फॉर दैट. Second activity is given here. The type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is synopsis. Synopsis means summarizing करना, shortcut में लिखना. Okay. Student, this activity will occur in unseen passage, question number 2, and it contains 3 marks. Okay. So overall summary means such kind of activity which we are going to learn here, in which we just write down the gist of paragraph, summary of the paragraph in as few word as possible. जितना हो सके उतना कम से कम शब्दों में जो भी हमने वो 2-3 पैराग्राफ से या फिर जो भी हमें एक्सट्रैक्ट दिया है उससे हमें जो भी समझ में आया वो कम से कम शब्दों में लिखना, मतलब समराइज करना. See, second activity is given here. There are various ways of incorporating other writers' words into your own writing. Various ways are there. बहुत सारे अलग अलग मार्ग होते हैं of incorporating करना मतलब समाविष्ट करना other writers were into your own work. दूसरों के जो भी राइटिंग है, लिटरेरी वर्क है, वो अपने शब्दों में संक्षिप्त में या फिर समाविष्ट करना, अपने शब्दों में लिखना, ये भी एक आर्ट है. They differ according to the closeness of your writing to the sources writing. Match the ways of writing in brief given in column A with their descriptions in column B. 2 columns are given here. In one column, first column,
there are ways of writing, different ways of writing are given here, and in column B descriptions of those writing is given. We are going to just match those words. Already I have given here those answers of those matching. First one is summarizing, and its answer is E. Summarizing means it includes main ideas into own words. अपने शब्दों में ही मेन आइडिया लिखना, इट इज कॉल्ड समराइजिंग. ओके, सेकंड वन इज पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग मीन्स शब्द समूह बनाना. उसका है ए, इंक्लूडिंग, सॉरी, इट इंक्लूड्स not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. पैराफ्रेजिंग करना मतलब शब्द समूह में लिखना, तो उसमें सिर्फ मेन आइडिया नहीं लिखा जाता, डिटेल एक्सप्रेस किया जाता है क्लियरली, और पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ एक्सप्रेस किया जाता है. थर्ड वन इज प्रिसाइज राइटिंग, एंड उसका एक्सप्लेनेशन है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन है D. It includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. Okay, precise writing मतलब सुस्पष्ट लिखना, जो भी हमें उस पैसेज में दिया है वो डिटेल वाइज एक्सप्लेन करना, स्पष्ट शब्दों में उसका मायना, उसका मीनिंग समझाना, मतलब प्रिसाइज राइटिंग होता है. फोर्थ वन इज कोटिंग. कोटिंग मीन फ्रेमिंग करना या फिर कोटिंग करना, या फिर उसे हिंदी में उद्धृत करना कहा जाता है. ओके, मीन्स उसमें क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है एफ, इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल and match the document word by word. It must be identical. वो identical होता है to the original and match the document word by word. Identical होता है original का, और word to word उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया होता है वो वर्ड टू वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया जाता है. नेक्स्ट इज एडिटिंग. एडिटिंग मतलब जो भी हमें उसमें चेंजेस चाहिए होता है वो चेंजेस प्रॉपरली करवा के उसको एडिटिंग कहा जाता है, संपादन करना उसे कहा जाता है. उसका एक्सप्लेनेशन है, इट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्टिंग, कंडेंसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जो भी हमें चेंजेस उसमें चाहिए वो एडिटिंग के थ्रू हम करवा सकते हैं. देन गिस्ट राइटिंग. गिस्ट राइटिंग मतलब समरी की तरह या फिर उसमें शॉर्टकट में लिखना होता है, मुख्य मुख्य मुद्दे उसमें पॉइंट आउट लिखा जाता है. उसका एक्सप्लेनेशन है, इट इंक्लूड्स द मोस्ट इसेंशियल पार्ट और द क्रुक्स ऑफ द मैटर. जो भी इम्पोर्टेंट या फिर मुख्य पॉइंट होता है वो सब कुछ वहां पे लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट थिंग उसमें लिखा जाता है, उसे गिस्ट राइटिंग कहा जाता है. स्टूडेंट, समराइजिंग इज अ स्किल एंड इट नीड्स प्रैक्टिस. समराइजिंग ये स्किल है और उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस इसेंशियल है. You have to take unseen passages and try to write down the summary. अलग अलग passages आपको लेना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको summarizing practice करना पड़ेगा. See on next page, समरी राइटिंग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इज वन ऑफ द काउंटलेस मैक्सिम्स कॉइन्ड बाय विलियम शेक्सपियर. उन्होंने कहा है कि ब्रेविटी मीन्स संक्षेप में लिखना या फिर समराइज करके लिखना या फिर समराइज करना या फिर शॉर्टकट में अपना इन शॉर्ट हमारी जो भी विचार है वो एक्सप्रेस करना. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. विट मीन्स व्यवहार ज्ञान, हमें उसे कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट मतलब संक्षेप में बोलना, संक्षेप में लिखना, सारांश में
कम शब्दों में हमारी बात सामने वाले को समझाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सोल है व्यवहार ज्ञान के लिए या फिर अपने लाइफ में। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज रिलेवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। उनके अनुसार ये ब्रेविटी जो है ये इसेंशियल थिंग है। सारांश में बोलना, सारांश में लिखना ये इसेंशियल थिंग है स्पीकिंग के लिए, और राइटिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट थिंग है। ब्रेविटी और कंसाइशंस मीन्स सारांश में, संक्षेप में बोलना। is the cutting out of unnecessary word while conveying an idea। अनावश्यक जो शब्द होते हैं उसको कट आउट करके अपने विचार सामने वाले को कन्वे करना या फिर उस तक पहुंचाना, ये इम्पोर्टेंट स्किल है अकॉर्डिंग टू हिम। ओवरऑल फ्रेंड्स, इसमें हमें यही स्किल सीखना है कि जो भी पैराग्राफ इन डिटेल इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा उसको, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको अंडरलाइन करके हमें समराइजिंग करना है, समरी उसका लिखना है। सी हियर डूज एंड डोंट्स आर गिवन। डूज ऑफ समरी राइटिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। रीड एंड रीड द पैसेज, वॉट एवर अनसीन पैसेज इज गिवन देयर वी हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, देन अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ। read the instructions, whatever instructions are given there or whatever information is conveyed through that paragraph, we should understood that properly. Find exactly what you need to summarize, क्या important चीज है उसमें, उस पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन या फिर कौन सा आइडिया कन्वे किया है वो एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बना के हमें जो भी मेन आइडिया है वो आइडेंटिफाई करना है। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन, जो भी लॉन्ग सेंटेंसेस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए उसके हमें शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। वी कैन यूज जॉइन वर्ड्स जैसे एंड, बट, और ऐसे जॉइन वर्ड्स जहाँ पे भी यूज हुए हो उसके छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना है। अदरवाइज वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, व्हाट, विच, बट, व्हेन, वेदर, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स। लिंकर्स मीन्स द सेम थिंग विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं एंड, बट, जॉइन वर्ड्स जो है उनका यूज करके, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे एज सुन एज, इंस, एज वेल एज, ये सारे शब्दों का यूज करके हमें सेंटेंस लिंकर्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाना है। मतलब दो चार सेंटेंस में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है वो शॉर्टकटली एक हाथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करके हमें बनाना है, कि जो भी बता है या है वो कॉमा का यूज करके या फिर एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके हम वो एक ही सेंटेंस में शॉर्टकटली हमें उसे लिखना है। रिमूव रिडंडेंट वर्ड एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द की सेंटेंसेस, जो भी रिपीटेशंस आए हैं, अनावश्यक वर्ड्स वहां पे यूज किए हैं उसको रिमूव करना है, जो की सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उससे। देन ओमिट डिटेल्स, डिटेल में एक्सप्लेन कर किया है एक हद चीज उसको ओमिट करना है, उसको अवॉइड करना है। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, दिस इज द मोस्ट important instruction is given here, that we are not going to use our own interpretation, our own opinions to write the summary। हमें अपना खुद का मत वहां पे एक्सप्रेस नहीं करना है, खुद के विचार वहां पे नहीं लिखने हैं। जो भी पैराग्राफ ने दिया है, जो भी पैसेज में दिया है, according to that writer we are going to summarize that thing। उन्होंने क्या कहा है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, वो शॉर्टकटली समराइज करके हमें लिखना है। मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, मेन जो वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उसको अंडरस्टैंड करके या फिर उसको अंडरलाइन करके रखना है। देन यूज प्रॉपर सिक्वेंस एज पर द पैसेज, जो भी पैसेज दिया है उसके अनुसार
सीक्वेंस में ही लिखना है, पहले कौन सा पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है या फिर किस बारे में कहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंसली हमें अंडरलाइन करके सेंटेंसेस चूज करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वी मस्ट गिव प्रॉपर टाइटल टू दैट समराइजिंग। जो भी हमें समरी राइटिंग करना है, जो भी हमने पैसेज लिखा है, सॉरी उस क्वेश्चन पेपर में जो भी पैसेज दिया है उसको देख के प्रॉपर टाइटल सोच के हमें लिखना है। एंड we are going to write that summary only in one paragraph. Whether the unseen passage is of 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स आर गिवन देयर, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पैराग्राफ भी वहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो कितना ही बड़ा पैसेज हो, हमें समरी एक ही पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले उसका टाइटल डिसाइड करो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो और एक ही पैराग्राफ में शॉर्टकटली जो भी उस पैराग्राफ में दिया है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, these are the do's of summary writing. Now don'ts are given here. Don'ts में क्या क्या दिया है, include means don't include anything, your own opinion या फिर कुछ other information, if you have any extra information about that thing, whatever idea is given in that unseen paragraph, don't include your own information into that summary. जितना उसमें दिया है उतना ही समराइज करना है, खुद का ओपिनियन या फिर खुद के विचार, खुद की एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए डोंट इंक्लूड। देन डोंट एक्सक्लूड, कुछ इसेंशियल चीजें या फिर इसेंशियल पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन किए होंगे, उसमें से भी कुछ एक्सक्लूड नहीं करना है। ओके, देन डोंट ऐड, कुछ भी ऐड नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड, नो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड नहीं करना है। whether you know more whatever given in that paragraph, जो भी उस पैराग्राफ में दिया है उससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन पता है उस चीज के बारे में, उस थिंग के बारे में, फिर भी आपको खुद का कुछ ऐड नहीं करना है। डोंट कमेंट मीन्स द सेम थिंग, डूज में जैसे कहा था कि अवॉइड इंटरप्रिटेशन या फिर खुद का ओपिनियन वहां पे नहीं देना है, वही चीज है यहाँ पे डोंट कमेंट, खुद के कमेंट्स वहां पे ऐड नहीं करने हैं। डोंट गिव एग्जाम्पल्स, और एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल भी हमें वहां पे ऐड नहीं करने हैं। ओके, so for your practice one unseen paragraph is given here. See, the passage have more than 2, 3, 4, 5, 6 paragraphs are given here. Read this paragraph properly and then follow the steps which are given here for summary writing, and see the proper summary is already given here. First of all, they have given the suitable title. Whatever passage is given there, read that passage properly 2 times, 3 times, and then you will definitely understood the summary. जो भी पैराग्राफ यहाँ पे दिया है वो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए है, हैंडल विथ केयर, लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर, जिनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इस 6 पैराग्राफ्स में दिया है, उसका छोटा सा समरी करके हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। ओके, दैट्स इट। नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू फ्यू पैराग्राफ्स, यू हैव टू जस्ट make your own summary writing. In this brainstorming, here is also one paragraph is given here, that read the passage and write in summary its summary according to the given steps. जो भी steps हमने वहाँ पे ऊपर देखे, जो भी do's and don'ts हमने देखे, according to that you are going to make your own summary here. Okay, so solve this and send me solved summary your answers in our WhatsApp group or personally. Okay, okay, bye bye, have a nice day.